Okay, so good afternoon, all of you. So let us begin today's class. Today we will be discussing the role of different industries associations that have been formed for promoting entrepreneurship. Now, look, what has been done is that look, the government has instituted, okay, or it has formed certain institutions that play a very, very important role in developing entrepreneurship within the country. Okay, so they these institutions can be involved in probably advising government that what type of government policies should be formed for different entrepreneurship ventures, and they also along with assisting the government in formulation of policies, these type of associations, they also help entrepreneurs in any field in which they need assistance, be it finance, be it marketing, be it any type of technical support. So, look, a lot of institutions have been set up in India. So, like you can clearly see, here is this long list of here is this long list of institutions. So, we have first is your SIDO, that is Small Industries and Development Association. Look, out of all these seven, I would say that the first three are very important from the point of view of the purpose that they serve, as well as from the exam point of view. The others are there, but they don't play that big role, and they're not even that important from the exam point of view. So okay, so let us just quickly begin with the first one, that is SIDO. Now look, as the name says, this SIDO is nothing but this is the Small Industries Development Organization. It was established way back in October 1973, and it was established by Ministry of Trade, Industry and Marketing under the Ministry of Small Scale Industries, Government of India. Okay, now look, what are the objectives of SIDO? Now look, जो सीडो है ये क्या है? इट इज द एपेक्स बॉडी. एपेक्स बॉडी मतलब सबसे हाईएस्ट बॉडी है ये सेंटर के लेवल पे. ये सेंटर के लेवल पे फंक्शन करती है, स्टेट के लेवल पे फंक्शन नहीं करती है. और इसका काम क्या है? ये असिस्ट करती है गवर्नमेंट को फॉर फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट स्कीम्स फॉर व्हाट पर्पसेस? फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अब देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है उनको सपोर्ट चाहिए होता है. अगर हम चाहते हैं हमारे देश में कि छोटी इंडस्ट्रीज जो है कल को जाके बड़ी बने, जैसे अंबानी की अगर आप बात करो तो अंबानी भी एक बार छोटे स्केल से स्टार्ट हुआ था ना. आफ्टर दैट इट बिकेम अ बिग एंटरप्राइज. टुडे इट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइजेस इन द वर्ल्ड, but it also started small. Okay, so you have to see that how can you promote such small scale enterprises, how can you develop them, probably अगर उनको कोई assistance चाहिए तो वो कैसे दिया जाएगा, and all those things. Then coordinating and monitoring the implementation of these policies and programs. अब देखो, गवर्नमेंट ने तो स्कीम अनाउंस कर दी. गवर्नमेंट ने बोला हम एंटरप्रेन्योर्स को मानो इतने करोड़ रुपए का लोन देंगे, इतने कम ब्याज दर पे देंगे, सब देंगे. ठीक है, गवर्नमेंट हैज अनाउंस द पॉलिसी, इट इज डन. ओके, अब बेटा सिर्फ पॉलिसी अनाउंस करके तो नहीं हो जाता ना. अब उसके बाद उसको कोऑर्डिनेट भी तो करना पड़ेगा ना. जो लोग आएंगे उनको देखना है कि किस तरह के लोग आ रहे हैं लोन लेने के लिए. आर दे इन दी पोजिशन टू पे इट बैक और नॉट? तो उसको कोऑर्डिनेट करना, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना कि वो सही दिशा में जा रही है नहीं जा रही. मानो आपने स्कीम अनाउंस कर दी और कोई आ ही नहीं रहा लोन लेने के लिए, फिर देर इज नो पॉइंट ऑफ दैट स्कीम ना, बेकार है वो स्कीम फिर तो मॉनिटर करना है कि आखिर लोगों को चाहिए क्या, उस हिसाब से यू हैव टू चेंज दी पॉलिसीज अकॉर्डिंगली. Then they play a very very constructive role for strengthening of the small scale sector. अब देखो, स्मॉल स्केल सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, उनको बूस्ट चाहिए, तो उसको कैसे बूस्ट दिया जाएगा? तो अगेन दे प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल फॉर दैट. आजकल आप देखोगे कि बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सम ऑफ देम आर जस्ट टोटली इनटू एक्सपोर्ट. लाइक इफ यू गो टुवर्ड्स राजस्थान, तो आपको पता है जैसे राजस्थान का जो कल्चर है वो बहुत रिच है. ठीक है, वहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, प्रोबेबली जो वहाँ का आर्ट है, इट इज लाइक अनमैच्ड. ओके, लाइक यू लुक एट देयर बेडशीट्स, यू लुक एट देयर pieces, decorative pieces that they have, you look at their jute bags, and all those things. So like it's just completely different. Okay, and you will see that a lot of people in the backward regions of Rajasthan, they have developed small scale enterprises, whereby they're really into manufacturing all these things. And what are they doing? They are exporting it all overseas.
एंड यू नो अब एक्सपोर्ट करना है बाहर, बट एक्सपोर्ट करना आता नहीं है, हमें नहीं पता एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, किसको सामान देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या चीजें देखनी चाहिए। तो उन सब चीजों के लिए यू नो अगेन यू नो हाउ टू स्ट्रेंथन, बेसिकली उनको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, उनको क्या चीज चाहिए, ठीक है, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको फाइनेंस चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या चाहिए उनको, यू नो बेसिकली अगेन दे हेल्प देम विद दैट। Then they provide an extended support through comprehensive plan for promotion of entrepreneurship. फिर वो extended support भी देते हैं, मानो एक बार आपको initially support कर दिया, उसके बाद 2 साल के बाद आपको फिर से support चाहिए, ठीक है, probably आपको finance की दिक्कत आ रही है, आपको marketing की दिक्कत आ रही है, and know you're looking for something from the government, then again the government is going to come and help you, fine, in the with the help of CEDO. सो अब बेसिकली अगर हम इस पूरे का क्रक्स निकालें तो जो भी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीडो, ओके, कि वो स्टेट्स को असिस्ट करे इन सब चीजों के अंदर। एंड इसके लिए उन्होंने क्या करा है, उन्होंने ये एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, ब्रांच एमएसएमई डीआईज बनाई हैं, रीजनल टेस्टिंग सेंटर्स बनाए हैं, फील्ड टेस्टिंग स्टेशंस बनाए हैं, ठीक है, और बहुत सारी ऑटोनोमस बॉडीज बनाई हैं जो इन सब चीजों में अलग अलग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा ये और कुछ सर्विसेज भी देती हैं, जैसे कि ये एडवाइस करती है गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में फॉर प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड फॉर द अपग्रेडेशन टू मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगी कि आपको किस तरह की पॉलिसीज लेके आनी चाहिए, किस तरह का इम्पेटस देना चाहिए ऐसी इंडस्ट्रीज को, ठीक है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ लोन, or maybe in the form of tax concessions, or probably like sometimes we say that you just like there are this export processing zones and all these things, तो जहाँ पे if you set up the enterprise, then you are given land at a very cheap rate। तो इस तरह की चीजों में गवर्नमेंट को ना एडवाइस करती है कि कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप को बेसिकली एक बूस्ट दें अपने, स्पेशली विद रिगार्ड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ओके। Then they provide techno-economic and managerial consultancy, common facility extension to small scale enterprises। अब देखो, मानो आपको कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है, ठीक है, और आपको नहीं पता कि वो मार्केट में किस तरह से लाना चाहिए, कहाँ टारगेट कंज्यूमर्स हैं उसके, ठीक है, किस प्राइस पे वो लोग बाय करेंगे, एंड प्रोबेबली यू आर लुकिंग फॉर सम एडवाइस, यू आर लुकिंग फॉर सम कंसल्टेंसी, ठीक है, तो वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को कंसल्टेंसी भी देते हैं टेक्नोलॉजिकल मैटर्स पे, इकोनॉमिक मैटर्स पे, मैनेजरियल मैटर्स पे, ठीक है, सब मैटर्स पे दे हेल्प यू, दे गिव यू कंसल्टेंसी। Then they provide facilities for technology upgradation, modernization, quality improvement, and infrastructure of small scale enterprises. Now look, these small scale enterprises जो है वो अगर आप large scale enterprises के साथ compare करो तो they are basically at a disadvantaged position because इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, ठीक है, तो ये बेचारे लोग कैसे मतलब सस्टेन करेंगे ना, तो इनको टेक्नोलॉजी कैसे ये अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे अपने आप को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, क्वालिटी अपनी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो उन सब चीजों के लिए फैसिलिटीज देते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबली इफ यू वांट अ मशीनरी, तो दे कैन हेल्प यू विद इट, उस पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम करवा सकते हैं, या मतलब दे विल हेल्प यू विद ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो मशीनरी गवर्नमेंट खुद ही ले आए और आपको एक रेंट बेसिस पे दे दे, तो उस तरह से दे माइट हेल्प यू। Then developing human resources through training and skill upgradation of small scale entrepreneurs। अब मानो आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए या स्किल अपग्रेडेशन चाहिए स्मॉल स्केल entrepreneurs को, let us say you are into making softwares for let us say for some of your US clients, okay, and you're a small scale firm, and probably you need to upgrade your skills, keeping in view that now this is an era of artificial intelligence, and everything is happening automatically, so you need to upgrade your skills and you're looking for somebody to assist you for that। So again CEDO can help you with that। Then providing economic information services to the government and small enterprises। अब अगर आपको कोई information services चाहिए, government को कोई economic information services चाहिए कि how are these industries doing and all those things, तो वो सारी information भी government को भी देता है और small enterprises को भी देता है,
और क्या करता है इसके अलावा, इट मेंटेन्स लाइजन विद अदर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, प्लानिंग कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस कंसर्न्ड विद डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। इसके अलावा ये क्या करता है, लाइजन मेंटेन करता है। लाइजन मतलब एक ये बीच का एक तरह से ब्रोकर टाइप है, तो ये सबके साथ कोऑर्डिनेट करता है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा, प्लानिंग कमीशन के साथ भी, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट है वो रुके ना। ठीक है। After that, we have the next one, that is EDI, that is the Entrepreneurship Development Institute of India. This is basically located near Ahmedabad. Okay, and ये proper courses भी कराता है entrepreneurship में. तो any one of you, if you are interested after your BA program to pursue a course, especially in entrepreneurship, then you can just visit their website. तो देखो ईडीआई जो है, अगेन इट इज बेसिकली एन ऑटोनॉमस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट. अगेन इट वाज सेट अप इन द सेम ईयर 1983. अच्छा no, okay, this was 1973, this is 1983, 10 years later. ओके, एंड दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इसको स्पॉन्सर कौन करता है, पैसे कौन देता है इसके लिए, आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई. ओके, तो ये लोग जो है इसको स्पॉन्सर करते हैं, इसको पैसे देते हैं रन करने के लिए. Fine. EDI has helped in setting up of 12 state level exclusive entrepreneurship development centers and institutes in India. अब EDI की हेल्प से क्या हुआ है, इन्होंने स्पेशली entrepreneurship को डेवलप करने के लिए 12 इंस्टीट्यूट्स खोले हैं in different parts of India. Okay. Also, it has established this thing which is called as CREED. Now, what is this CREED? CREED is Center for Research in Entrepreneurship, Education and Development. इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है दैट इट लुक्स इनटू इश्यूज दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस. ये रिसर्चर्स को और ट्रेनर्स को इनके साथ कनेक्ट करता है, इनके लिए सेमिनार्स करवाता है, ताकि एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप पे लोग एजुकेट होते रहे, उनकी रिसर्च होती रहे. ठीक है, तो इस तरह का ये एक नेटवर्क बेसिकली क्रिएट करता है. ठीक है. नाउ अब मिशन क्या है ईडीआई का, देखो मिशन जो ईडीआई का है वो यही है दैट इट वांट्स टू बिकम अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या करता है, फटाफट से काम करवाता है. अगर किसी भी चीज में कैटलिस्ट डाल दो तो वो क्या करता है, क्विक रिएक्शन देता है. तो उसका काम ये है कि देखो इंडिया को भी जरूरत है एंटरप्रेन्योर्स की, दैट इज द थ्रस्ट ऑफ द इंटायर नेशन. It is basically generating this pool of competent entrepreneurs, and it is going to help SMEs to convert into MSME or into large scale enterprises. ओके, और ये क्या करता है, उसके लिए काफी सारी उनको एजुकेशन देता है, ट्रेनिंग देता है, रिसर्च देता है. और इसका काम ये भी है कि देश भर में वो और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खोले, ताकि in every state we have these type of institutes which are helping entrepreneurs. Fine. So that is one thing. Now, along with that, ये और क्या करता है? Look, it has this responsibility to groom entrepreneurs while they are studying, and that is why EDI जो है, it takes its courses to a lot of schools, colleges, and management schools. And it tells them that include entrepreneurship in your curriculum. तो जैसे अभी आप भी पढ़ रहे हो ये entrepreneurship का syllabus, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये इंकरेज कर रहा है. स्कूल लेवल पे भी आप देख रहे हो कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया जा रहा है, वहां पे भी एक सिलेबस है. तो इट इज रियली ट्राइंग टू इनकलकेट दिस कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री बाय अप्रोचिंग ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स हु आर इन्वॉल्वड इन स्टडीज. ठीक है. अब अगर इंटरनेशनल एरिना में देखें तो ये क्या काम कर रहा है, देखो इट इज ट्राइंग टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप बाय वे ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज and organizing training programs, have helped EDI in earning accolades and support from the World Bank. Just give me 1 minute, bachcha. Just give me 1 minute, okay?
Yeah, I'm sorry. So, look, in the international arena, again, they are making a lot of efforts by organizing training programs. And, it has basically received a lot of support and appreciation from World Bank, Commonwealth Secretariat, International Labour Organization, that is ILO, UNIDO, British Council, Ford, European Union, Asian, and, other renowned institutes. Apart from that, they have also set up these entrepreneurship development centers in Cambodia, Myanmar and Vietnam. ओके और ये और भी इनका प्लान है कि आगे जो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स हैं ये उज्बेकिस्तान में और 5 अफ्रीकन कंट्रीज में इसको एस्टैब्लिश करेंगे. तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंडिया के ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स वहां पे सेटअप होंगे so obviously entrepreneurs can go to those countries and they can look at the business opportunities over there, at the entrepreneurship opportunities over there, and they can trap them. And you can have an international base of consumers for yourself. Okay, so it's again a very good thing. Next we have is this Nesbud. This Nesbud is located in Delhi only, I think near Okhla or somewhere. Okay, what is this full form of Nesbud? This is National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development. Now, if we talk about NESBUD, it is basically, it is the premier organization of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. And it is again engaged in training, consultancy, and research to promote entrepreneurship in the country. It was also established in the same year as EDI, that is 1983, by the Government of India. And along with giving training, consultancy, and research, it also supervises the activities of various agencies who are involved in entrepreneurship development programs. ठीक है, तो जो बहुत सारी एजेंसीज के बारे में आगे आगे हम बात करेंगे, उनको भी सुपरवाइज करना कि वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, वो ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, उनका वो काम भी ये करता है. ठीक है. द मेजर एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूट आर ट्रेनर ऑफ ट्रेनर्स, दैट इज कॉल्ड एज TOT प्रोग्राम, जहाँ पे वो लोग ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दे सके. देन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं इनके. ठीक है, इट्स विच इज लाइक योर MBA. फिर एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे सिर्फ स्किल डेवलप किया जाता है. फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, EDPs हैं और क्लस्टर इंटरवेंशन है. ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हो. ठीक है. NESBUD has provided training to approximately 11 lakh people as on March 31st, 2017, and more than 40,000 training programs have been conducted since inception. Okay, and it has participants from more than 137 countries across the globe. Now, what are some of the functions of NESBUD? देखो जो NESBUD के functions हैं वो क्या हैं? To make effective strategies and methods. Effective strategies और methods बनाना कि entrepreneurship अगर हमें अपनी country में करवाना है तो उसके लिए क्या strategy use होनी चाहिए, क्या methods use होने चाहिए, वो बनाता है ये. To standardize model syllabus for training. अब अगर उनको train करना है तो उनके लिए syllabus बनाना. ठीक है, उनके लिए मैनुअल्स बनाना, एड्स बनाना, टूल्स बनाना. तो मानो अगर हम कह रहे हैं कि किसी को you want to let us say specialize someone in the art of sewing clothes. Okay, तो उसके लिए फिर you have to ensure ना that you have the proper equipment, you have the sewing machine, and you have probably an area whereby you have some of those machines, and people can come and work over there. You have cloth ready for them, and all those things. तो ये सब काम arrange करके देता है. फिर वर्कशॉप्स कंडक्ट करेगा, सेमिनार्स कंडक्ट करेगा, कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करेगा इन प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. देन इट इवैल्यूएट्स द बेनिफिट्स ऑफ EDPs. फिर इसका इवैल्यूएशन भी करता है कि जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल हैं, क्या उसमें से हम लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स निकाल पा रहे हैं कंट्री में या नहीं निकाल पा रहे हैं. गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहा है इस फील्ड में. ठीक है. इसके बाद हमारा अगला इंस्टीट्यूट है NIMSME, which is the National Institute for MSME Extension Training. Okay, now again look, this is under the Department of Ministry of Industry and Commerce, Government of India. एंड देखो ये जो है ये बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है ये 1960 में दिल्ली में एस्टैब्लिश हुआ था, बट लेटर ऑन ये हैदराबाद शिफ्ट हो गया था 1962 में, और इसको रीनेम कर दिया गया है एज इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग
इंस्टीट्यूट, ओके। एंड इसका बेसिकली प्रमोशन क्या है, इसका मेन रोल क्या है, इसका मेन रोल है वो प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, ओके। और ये क्या क्या काम करता है, ये सिलेबस बनाता है फॉर ट्रेनिंग स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, उनको एडवाइस करता है मैनेजरियल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, इन्हीं के लिए सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज करता है, और अगर कोई रिसर्च की या डॉक्यूमेंटेशन की सर्विस चाहिए होती है तो वो भी देता है, ठीक है, okay. After that we have this NSIC, again this is very important. NSIC क्या है, it is basically an ISO certified government of India enterprise under the Ministry of Small and Medium Scale Enterprises. It was established in 1995 by the government. एंड इसका भी मेन फोकस क्या है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को ही इनकरेज करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को असिस्ट करता है ताकि उनकी ग्रोथ हो पाए और उनको एक मार्केट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, वाया इट्स नेटवर्क। तो मानो अगर कोई स्मॉल स्केल एंटरप्राइज है या मीडियम स्केल एंटरप्राइज है और वो कह रहा है कि मुझे फॉरेन कंट्री में जाना है और मुझे अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो वो कैसे जाएगा, क्या हाउ इज इट गोइंग टू टैप दैट मार्केट, कैसे वहां वो अपने कस्टमर्स ढूंढेगा, किस आदमी को अपना प्रोडक्ट देगा या अपना स्टोर खोलेगा, कैसे ऑपरेट करेगा। तो इट ऑफर्स basically assistance in all those aspects, फाइन। तो इसके लिए इसके पास बहुत सारे टेक्निकल सेंटर्स हैं ऑल थ्रू आउट द कंट्री जो कि एंटरप्रेन्योर्स को इस चीज में हेल्प करते हैं। दे हैव सम स्कीम्स जो कि इनकी कॉम्पिटिटिवनेस इनहेंस करते हैं। तो इनकी स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर यू जस्ट गिव देम सम मनी एंड देन दे गिव यू सपोर्ट for their marketing, technology, finance, and all these services. So they are going to help you with all of that. Okay. Now apart from that ये और क्या करता है, ये करता है कंजोर्टिया एंड टेंडर मार्केटिंग। अभी कंजोर्टिया और टेंडर मार्केटिंग क्या है, लोग स्मॉल एंटरप्राइजेस इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी दे फेस प्रॉब्लम्स टू प्रोक्योर एंड एग्जीक्यूट लार्ज ऑर्डर्स which deny them a level playing field vis-a-vis the large enterprises. अब देखो होता क्या है कि स्मॉल एंटरप्राइजेस और लार्ज एंटरप्राइजेस अगर compete करें तो ऑब्वियस सी बात है कि लार्ज एंटरप्राइजेस विल हैव अ बिगर फुटिंग इन द मार्केट, ओके, बिकॉज दे आर बिग, ठीक है। अब होगा क्या कि दे विल ऑब्वियसली स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम्स वंस दे आर कंपीटिंग विद द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये क्या करता है, ये जितनी भी छोटी छोटी फर्म्स हैं ये इनका कंजोर्टियम बना देता है, मतलब इनको इस हाथ में ले आता है और बोलता है अब आप सब इकट्ठे आ गए हो। तो देखो जब सारे छोटे छोटे एंटरप्राइजेस इकट्ठे बन जाएंगे तो वो क्या बन जाती है, दे आर ऑल्सो नो लेस देन अ लार्ज एंटरप्राइज, ओके, एंड ऑल ऑफ देम आर मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट, सो दे कैन पूल देयर कैपेसिटी and they can give competition to the large scale enterprises as well. तो अब सबको इकट्ठे लाना जो एक ही प्रोडक्ट बना रही है, इट इज साउंडिंग सिंपल बट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ओके। तो ये इस चीज में हेल्प करता है कि अगर देयर आर स्मॉल फर्म्स which are producing the same product and they are facing a lot of competition from the large scale enterprises, especially in securing large orders, then what it will do is that it will make a consortium of these consortium means एक ग्रुप बनाएगा इन छोटी छोटी एंटरप्राइजेस का, ताकि ये सब लोग इकट्ठे आ पाए और उस लार्ज ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। देन सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन फॉर गवर्नमेंट परचेज। अब ये क्या है, देखो इसमें ये कहते हैं कि जो यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं अंडर द सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम ऑफ NSIC, they can get benefits under public procurement policy for MSCs. Even central ministries, departments, PSUs shall set a minimum goal of 20% of their total annual purchases of products or services produced or rendered by the MSMEs. तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट परचेज के लिए, कि मतलब अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इन लोगों से परचेज करना चाहता है तो दे हैव सेट अप दिस वेरी सिंपल स्कीम कि आपको बस एक बार रजिस्टर करना है एंड देन यू कैन सेल टू द गवर्नमेंट एज वेल। और इन्होंने इनको इनकरेज करने के लिए स्पेशली सेंट्रल डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज पे एक गोल लगाया है कि कम से कम 20% जो भी उनकी एनुअल परचेजेस है वो MSME से होनी चाहिए। अब आप कहोगे मैम ये क्या कैसा सामान खरीदेंगे, लुक एवरी मिनिस्ट्री wherever it is functioning it needs certain basic things में आप ले लो, जैसे स्टेशनरी हो गया, ठीक है। अब स्टेशनरी में लोग एवरीबडी नीड्स पेन्स, यू नीड नोटबुक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। अब ये कहाँ से आएंगी, आप MSME से प्रिक्योर करो, ओके।
think that it is better to have these things from MSMEs. Similarly, you need laptops, you need computers. So instead of going for these bigger brands, go for small scale industries के products. Okay, use them over there. Okay, तो इस तरह से they are trying to give a boost to small scale industries. After that we have these intermediary services. अभी intermediary services क्या है? देखो, NSIC ने देखा कि ये इंफॉर्मेटरी सर्विसेज जो है ये क्या करेगा, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन देगा बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी पे, और वर्ल्ड में जाके जो इंडिया की कोर कॉम्पिटेंस है उसको भी एग्जिबिट करेगा, जो MSMEs की कोर कॉम्पिटेंस है. जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का आर्ट, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट, एवरीथिंग दे आर जस्ट अनमैच्ड. तो वो जाते हैं ये लोग बाहर प्रेजेंट करेंगे कि we have this rich heritage, we have this culture, and why is it good to buy from here. तो इस तरह की सर्विसेज देते हैं. उसके अलावा एक B2B वेब पोर्टल इन्होंने बनाया है जो कि मेंबर्स को डेटाबेस के फॉर्म में काफी सारी सर्विसेज देता है. जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर मानो किसी और एंटरप्राइज के साथ उनको इंटरैक्ट करना है, जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, सो दे कैन इंटरैक्ट ओवर देयर एंड गेट दो सर्विसेज. उसके अलावा उन्होंने सेल्फ वेब डेवलपमेंट टूल्स बनाए हैं. मानो ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ऑनलाइन जाना है, दे वांट टू सेल ऑनलाइन, ओके, बट दे डोंट नो हाउ टू मेक द वेबसाइट. they have made some tools जहाँ पे they can go and they can easily configure कि अगर अपने आप ही उनको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है तो वो कैसे बना सकते हैं. फिर नेशनल टेंडर्स ऑन ईमेल एंड सेंट्रलाइज्ड मेल सिस्टम. फिर देखो गवर्नमेंट भी टेंडर्स निकालती है, ठीक है, तो उन टेंडर्स पे वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उसका यूज कर सकते हैं, तो उस सब में भी हेल्प करता है. आफ्टर दैट वी हैव, ओके, आई थिंक आई एम गोइंग अ वेरी स्लो, आई नीड टू catch up a little bit. Just give me 1 minute. Fine. Okay. We will go a little fast now. Then we have this National Alliance of Young Entrepreneurs. So look, this is basically for encouraging all the young entrepreneurs, especially the women entrepreneurs. और ये क्या करता है बेसिकली, ये ना क्रेडिबिलिटी बनाता है उन यंग एंटरप्रेन्योर्स की गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में, कि ये लोग प्रोफेशनल, कॉम्पिटेंट और इफेक्टिव सर्विसेज दे पाए. ठीक है. उसके अलावा it is also working in the area of international cooperation in small and medium scale enterprises. Okay. After that, it is also creating a lot of strategies and policies, in coordination with the central and state government, so that these enterprises can perform better. And these are some of these main efforts. Okay. और ये IIE का तो ये आप खुद पढ़ लेना, एक छोटा सा पैराग्राफ है. I will forward it on the group. It's like nothing much. Okay. Now let us come to industrial associations. ठीक है. अब देखो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस क्या होती है. इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस ऐसी बॉडीज होती हैं जो कि इंडस्ट्रियल ग्रुप्स खुद ही बनाती हैं, ठीक है, और उनको स्पॉन्सर भी करती हैं, उनको पैसा भी देती हैं. ये क्यों बनाई जाती है? ये एसोसिएशन जो है ये बेसिकली इंडस्ट्रीज की राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस. Fine. Now, what is the specific role of industrial associations? Look, it is given in your book as well कि specifically ये लोग क्या काम करती हैं. Look, the main aim is to develop the respective industry. अब main aim क्या है कि जो भी इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं वो ऊपर उठे, वो डेवलप हो, ठीक है. और इसके लिए ये इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी एज अ होल, they understand that what are the needs of their industry and how are they contributing to the nation's well-being. तो वो ये बताती हैं कि कैसे ये इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है हमारी देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, और कैसे ये नेशन को फायदा दे रही है, ठीक है. तो एक तो ये यही करेगी कि आइडेंटिफाई करेगी इंडस्ट्री का रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. फिर कैटलिस्ट की तरह काम करती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि ये बनाई स्पेशली एक इंडस्ट्री के लिए गई है, तो ये स्पेशल ध्यान देगी कि ये इंडस्ट्री जो है ये ग्रो करे. फिर इट विल रीइंफोर्स इंडस्ट्रीज कमिटमेंट टू दी सोसाइटी. तो ये इंडस्ट्री को भी बोलेगी कि आप सोसाइटी के लिए कमिटेड रहो, उनको वही प्रोडक्ट्स दो जो उनके लिए अच्छे हैं, एनवायरमेंटली कॉन्शियस रहो. Then it will provide any data that the industry or the government needs.
ओके उसके अलावा ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री को, ताकि वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे पाए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी दे, साथ ही साथ एनर्जी भी ढंग से मैनेज करें। ठीक है, the energy management is basically like, you know, shifting to more cleaner sources, like having solar energy and all those things in place, and all those things. Okay, एंड देन इट इज कि अपने सेक्टर को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना और कॉपरेशन सिक्योर करना बाकी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, इसके लिए भी इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग एसोसिएशंस बनाई है। सो देयर आर सम प्रोमिनेंट एसोसिएशंस दैट आर देयर इन द इंडियन industry, in the Indian basically arena. So first is the Confederation of Indian Industry, that is CII. Then we have FICCI, then we have SOHAM, we have NASSCOM and we have IIA. ठीक है, ये सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज को मैनेज करती हैं। ठीक है, तो लेट अस सी एक एक करके कि क्या है। सबसे पहला है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो एज यू कैन सी दिस इज अ नॉन गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की नहीं है, नॉन गवर्नमेंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट है और इंडस्ट्री लेड और इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसको मैनेज भी इंडस्ट्री करती है और इसको पैसा भी इंडस्ट्रीज ही देती है। ये 1985 में फॉर्म हुई थी और इसमें कम से कम 8300 मेंबर्स हैं, पब्लिक सेक्टर से भी एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर से भी। और इसमें एसएमई से भी लोग हैं, दैट मीन्स जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस हैं, वो भी हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज भी हैं। और इसके पास इनडायरेक्ट मेंबरशिप है कम से कम 2 लाख से ज्यादा एंटरप्राइजेस की। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट सीआईआई क्या करता है, वो गवर्नमेंट के साथ काम करता है पॉलिसी इश्यूज पे। ठीक है, तो look, all of you know that, you know, if these industries or the business has to function, then, you know, you have to maintain a close liaison with the government. The government needs to know that, you know, what is the requirement of the industry, and accordingly they need to come up with the policies to boost those sectors. Okay, तो इसके देखो 67 ऑफिसेज हैं। ठीक है, 11 उसमें से ओवरसीज है एंड इसकी प्रेजेंस है 129 कंट्रीज में। And you know, it is a reference point for Indians as well as for the international business community. और इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कि ये क्रिएट करती है और सस्टेन भी करवाएगी एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि कंड्यूसिव है फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, फिर ये पार्टनर करती है इंडस्ट्री और गवर्नमेंट दोनों के साथ बाय प्रोवाइडिंग देम एडवाइजिंग एंड कंसल्टेटिव एंड कंसल्टेंसी। ठीक है, तो एडवाइस और कंसल्टेंसी के थ्रू इन दोनों के बीच में एक तरह से ब्रिज की तरह भी ये एक्ट करती है। ठीक है, नाउ लेट अस लुक स्पेसिफिकली कि और क्या क्या करती है। लुक, ये पॉलिसी एडवोकेसी करती है। तो लुक, सीआईआई हैज ओवर 500 इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स, councils, committees, task force, working groups, among others, who are working at national and regional levels across industry. Okay, these groups, they give shape as well as articulate members concerned to the government, policymakers, regulators, think tanks, etc. They work proactively with the government to form policies that should empower the businesses. So as you can see over here, देखो सारे businesses को run करने के लिए they want that, you know, the government should support them in some way or the other. It is very important. मानो अगर आज government ये बोलती कि हमें चाइना के साथ business नहीं करना, now tell me that, you know, if such a policy comes into practice, then you know, it is going to have such a profound impact on businesses all across. Okay, because look, these days every business has some or the other thing happening with China, and if the government announces such a thing, then, you know, it can create problem for many businesses. तो ये देख रहा है कि, यू नो, गवर्नमेंट जो है उसको ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए कि ना हमारे जो बिजनेसेस हैं वो एम्पावर हो पाए, उनका इंटरनेशनल प्रेजेंस बन पाए, उनकी वर्किंग इंक्रीज हो पाए, वो ज्यादा एफिशिएंट हो पाए। ठीक है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर हमें अपने देश को आगे लेके जाना है तो देश आगे तभी जाएगा जब हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगी। ठीक है, क्योंकि these are actually the people, you know, who are paying taxes, who are contributing to the GDP of the nation, so their role is very very important in our country. Fine. After that, it is international and business development. Now look over here, ये क्या करती है, ये basically काम करती है you know, towards bringing foreign delegations and they ensure that, you know, they are enlisted in India.
तो बेसिकली ये क्या कर रही है, एक इंटरफेस की तरह काम कर रही है बिटवीन नेशनल इंडस्ट्रीज एंड जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं ओवरसीज। तो जैसे अगर आप देखो कि आजकल वियतनाम, फिलीपींस, दीज आर सम ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स दैट वी हैव ओवरसीज, एंड a lot of businesses are actually moving from China to these countries, in fact even Sri Lanka। फाइन, तो ये क्या करती हैं, ये ऐसे जो इमर्जिंग मार्केट ओवरसीज है, इनको हमारी नेशनल इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं, फॉरेन डेलीगेशंस बुलाती हैं, so that basically some type of business development can happen between both of them। फाइन, नर्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, अब ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का काम भी ये करती है। So they really ensure that whatever products we are producing, they should be competitive enough, and they should be good quality products। तो उसके लिए ये लोग थोड़ा सा वर्क करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Now look, this is again FICCI। आपने बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये 1927 में एस्टैब्लिश हुई थी, एंड दिस इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इट इज अगेन अ नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन काम क्या है, जिसका मेन काम है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्किंग अमंग द इंडियन इंडस्ट्री, पॉलिसी मेकर्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी। अब देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस दैट यू हैव नेटवर्किंग स्किल्स। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि matlab you should connect with like-minded people, probably who are in your same business, or you want to expand into some other territory, so probably you need to know certain people over there, which can help you with establishing your business, probably helping you out with finance, or with marketing, or giving you some ideas। So it's very important to have that kind of networking। तो ये क्या है, बेसिकली एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी, हमारी गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स और इंडियन इंडस्ट्री के लोग सब इकट्ठे आ जाते हैं। ठीक है, एंड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एवरीबडी कैन कम एंड नेटवर्क विद ईच अदर। तो मानो जो सीट पे बैठा है, जो पॉलिसी बना रहा है, ठीक है, और मानो जो बिजनेस कर रहा है, देयर इज नो वे ना दैट द टू कैन मीट ईच अदर। नो हाउ विल ही गेट टू नो कि अच्छा ये बिजनेसमैन है, ये बड़ा बडिंग इंटरप्राइज है, इसका आइडिया बहुत अच्छा है, और अगर हम एज अ गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, इस सेक्टर को बूस्ट दें, तो ये बहुत अच्छा कर पाएगा हमारे नेशन के लिए। नो हाउ विल दीज टू पर्सन्स नो अबाउट ईच अदर, इफ दे डोंट नो ईच अदर। तो फिक्की क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये ऐसे लोगों को साथ में लेके आएगा, ठीक है, और नेटवर्किंग कराएगा, ताकि जो भी हमारे गोल्स हैं वो अचीव हो पाए। ठीक है, इसमें कम से कम 3 लाख मेंबर्स हैं, और इसमें भी पब्लिक, प्राइवेट, एमएनसीज, एसएमसीज, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सारे इसका पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके मेन फंक्शंस क्या है, ये गाइडेंस और एजुकेशन देता है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, फॉरेन बिजनेस काउंसिल के साथ काम करता है, बिजनेस मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस कराता है, अपने मेंबर्स को असिस्ट करता है, एक्सपोर्ट्स में हेल्प करता है, ठीक है, फॉरेन बिजनेस डेलीगेट्स के साथ कॉन्वर्सेशंस में हेल्प करता है, इनवाइट्स अरेंज करवाता है उनकी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। After that, we have SOM। Now, what is this SOM? SOM is the Associated Chambers of Commerce and Industry in India. It was again established in the year 1920, and it has more than 400 chambers and trade associations all over the India। Like अलग-अलग जगह अलग-अलग हैं, जैसे पंजाब में अलग है, दिल्ली में अलग है, हैदराबाद में अलग है। ठीक है, और इसमें कम से कम 4.5 लाख मेंबर्स हैं all throughout India। Okay, and it really plays a very important role in sustaining our Indian economy, and in promoting trade, commerce and industrial environment throughout the country। Okay। जो एसओएम है, बेसिकली आजकल वो क्या काम कर रहा है, इट इज बेसिकली द फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज। तो देखो, एवरी बिजनेस नीड्स नॉलेज, इट नीड्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये उसका काम करता है, इट इज द फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज फॉर द इंडियन इंडस्ट्री। Okay, and it wants to redefine the growth and development of the Indian business arena in terms of technology driven cyber age of knowledge based economy। तो देखो, आजकल आप सबको पता है कि एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी।
तो टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे ये इंडस्ट्रीज अपने आप को लेवरेज कर सकती है मार्केट में, अपने आप को अपलिफ्ट कर सकती हैं, तो वो आजकल इसका जो मेन गोल है वो ये है, ठीक है। Now, this is basically a powerful, proactive and forward-looking association. जिसका main काम यही है कि वो corporate India की aspirations को basically fulfill करे, ठीक है। It also creates a conducive environment for Indian businesses to compete globally. उसके अलावा अगर Indian business को globally compete करना है तो उसके लिए उसको help करता है to go international. Okay, now ये किस किस चीजों में हेल्प करता है, ये ट्रेड में हेल्प करता है, वेदर इट इज नेशनल और इंटरनेशनल। इंडस्ट्री लेवल पे आपको हेल्प करेगा डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। प्रोफेशनल्स को भी हेल्प करता है, विच आर सीएस, लॉयर्स एंड कंसल्टेंट्स। इसके अलावा ट्रेड एसोसिएशंस और बाकी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को भी ये हेल्प करता है, ठीक है। सो अगेन you have a lot of chambers of commerce, like you have Bombay Chambers of Commerce, you have Cochin, you have Madras Chambers of Commerce, you have the PhD Chamber of Commerce and Industry, which is in New Delhi itself. Okay, so these are some of the chambers. 20 minutes. Okay, after that we have NAS, that is the National Association of Software and Service Companies. Now look, if you talk about this industry, this is again a not-for-profit association, and it is the apex body, which has which is basically into IT and BPM, that is Information Technology and Business Process Management. And it has played a very important role when it comes to India's GDP, exports, imports, infrastructure and global visibility. It was established in 1988, and since then it has been working to support the IT industry. And again and again it has basically played a very important role in building the architecture that was important for the IT sector to grow through policy advocacy, okay, by giving strategic direction to the sector, okay, and it has helped the businesses to dominate new frontiers. जैसे आपने देखा है कि इंडिया की इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है कुछ सालों में, चाहे आप विप्रो की बात करो, चाहे आप टीसीएस की बात करो, बड़ी बड़ी कंपनीज निकल के आई हैं, तो उसमें NASSCOM ने बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट करा है कि दिस इंडस्ट्री रियली ग्रोज, एंड यू हैव सीन दैट इंडिया इज रियली काउंटेड व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर, ओके। तो इंडिया का कोई मैच नहीं है, लाइक वी आर लाइक ग्लोबल, वी कैन इवन कम्पीट विद द यूएस व्हेन इट कम्स टू इट, ओके। तो इस इंडस्ट्री का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है कि ये जो जितनी भी ये इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर IT BPM की, वो स्ट्रेंथन हो, और जिस डायरेक्शन में उसको वो लेके जाना चाहती थी उस डायरेक्शन में वो लेके गई है, एंड इट हैज इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल प्लेयर, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन यू हैव दीज इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, दैट इज IIA। ये रिप्रेजेंट करती है सिर्फ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, और इसमें 6500 लोग जो है इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये बेसिकली एज यू कैन सी इट ऑब्वियसली वर्क्स फॉर द MSME सेक्टर्स, तो उनको जो भी सपोर्ट चाहिए अपनी प्रमोशन के लिए, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चाहिए, लीगल या टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे कोई एडवाइस चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में अगर कोई हेल्प चाहिए, प्रोसीजर्स या लॉ समझ नहीं आ रहे हैं, तो उन सब में इट हेल्प्स, फाइन, ओके। Just give me a minute. My laptop's battery is low. I will have to put it on charge. 15 minutes. Okay, now let us come to these self-help groups, which is our next topic. Okay, I will not be able to complete the entire chapter today, but let us see कि हम कितना कर पाते हैं, ठीक है। So let us go to through this opening case study, which is of Lijjat Papad. I'm sure you all of you must have had this papad sometime or the other in your lifetime. Okay, now look, this was
there is basically this society which is called as the Shri Mahila Griha Udyog Lijjat Papad Society, जो कि 1959 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय 7 सेमी लिटरेट वुमेन फ्रॉम गुजरात. ठीक है, बहुत पढ़ी लिखी औरतें नहीं थी, थोड़ी बहुत एजुकेशन आती थी, गुजरात की औरतें थी, 7 औरतें थी जिन्होंने इसको मिलके सेटअप किया था. ठीक है, बाय फॉर क्रिएटिंग देयर लाइवलीहुड. ठीक है, पैसे कमाने के लिए बेसिकली सेटअप किया था. और जो फाउंडेशन था कंपनी का वो इन कोर वैल्यूज पे था, दैट यू नो देयर वाज दिस म्यूचुअल फैमिली अफेक्शन, कंसर्न, ट्रस्ट एंड डिवोशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है, एट लिज्जत वुमेन प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी पापड़ एट रीजनेबल प्राइसेस. इनका मेन गोल क्या था कि ये बहुत अच्छा क्वालिटी का पापड़ देंगे और बहुत रीजनेबल प्राइस पे देंगे. बिकॉज ऑफ इट्स सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, the membership expanded from 7 sisters under one building to over 43,000 sisters throughout India. So can you see like कितना बड़ा इन्होंने अपने आप को ग्रो कर लिया है. जो सिर्फ 7 महिलाओं ने शुरू किया था, अब ये लिज्जत पापड़ जो बनाती है वो 43,000 sisters जो हैं all across India, you know, they are involved in making of these papads. Presently, the organization is widespread with its central office at Mumbai and 81 branches in India. तो ये इसका केस है. ठीक है, it has a seed capital of rupees 80 in 1959. It started with just rupees 80. Okay, और आज अगर आप उसका turnover देखो तो that is rupees 6.5 billion, which is more than 100 100 million USD dollars. Okay. और 2010 में इसने 290 मिलियन कमाए थे ओनली वाया एक्सपोर्ट्स. ओके, इट हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल दीज 43,000 वुमेन एंड यू नो इट्स मेन एम इज यू नो वुमेन एम्पावरमेंट हो, वुमेन सेल्फ रिलायंट रहे. बल्कि तो आज की डेट में अगर आप देखो तो जो लिज्जत है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस ही नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल ब्रांड भी है. अब हमने ये केस स्टडी क्यों पढ़ी है? हमने ये केस स्टडी इसलिए पढ़ी है बिकॉज आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू यू. ठीक है, अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेसिकली इमर्ज कहाँ से हुए थे? देखो, लिज्जत पापड़ वाज एन एग्जांपल ऑफ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप. ये जो बेसिकली कंसेप्ट है ये इंडिया से नहीं आया, ये आया है बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस से. ठीक है, तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो लोग बहुत पुअर हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, उन लोगों को जनरली कोई पैसा देने को तैयार नहीं होता. आप देखो, जिसके पास पैसा नहीं है अगर वो बैंक से जाके पैसा मांगेगा, बैंक बोलेगा अरे तू पैसा लेगा तो वापस देगा कैसे, हम देखो कैसे पैसा दे दें. ठीक है, अगर वो किसी मनी लेंडर के पास जाएगा तो वो बोलेगा अरे तू कुछ गिरवी रखवा तभी तो देखो पैसा दूंगा. अब जो बेचारा गरीब है वो क्या गिरवी रखवाएगा ना, और पैसा देगा ताकि वो कुछ काम कर सके. ठीक है, तो कोई क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होती ऐसे लोगों की, उनको कोई पैसा देने को तैयार नहीं होता. तो मोहम्मद यूनुस जो थे उस टाइम पे, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसे लोगों को अगर इफेक्ट करना है तो उनको छोटी अमाउंट का लोन देना चाहिए, और वो अपनी पॉकेट में से ही उनको एक छोटी अमाउंट का लोन देते थे. ठीक है, तो पहला जो उन्होंने लोन दिया था वो $27 का था, जो कि उन्होंने 42 वुमेन को दिया था एक विलेज में, जो कि क्या करती थी, बास्केट्स बनाती थी और उनको बेचती थी. ठीक है, एंड इवेंचुअली उन्होंने देखा कि क्योंकि उन्होंने उनको वो लोन दिया तो यू नो दे वर एबल टू मेक दोज बास्केट्स इन अ लार्जर क्वांटिटी, सेल देम नाइसली, एंड यू नो दे वर एबल टू रीपे द लोन. तो इससे हमारा एक ही कंसेप्ट आया माइक्रो फाइनेंस का, और यू नो दिस माइक्रो फाइनेंस इज बेसिकली ऑपरेटिंग अराउंड दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तो ये जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ये किसके कंसेप्ट पे काम करती है? माइक्रो फाइनेंस के बेसिस पे काम करती है. ठीक है, अब माइक्रो फाइनेंस जो है इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रमोशन ऑफ दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एंड यू नो वी हैव दिस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मॉडल फॉर देम. ये उन्हीं लोगों के लिए बना है जो कि बहुत मार्जिनलाइज्ड है, बहुत गरीब लोगों के लिए बना है जो डाउन ट्रोडन है, एंड दे आर दी पुअरेस्ट सेक्शन of the society. Okay, it is also known as banking for the poor. Fine. तो वर्ल्ड बैंक ने केस स्टडी कंडक्ट की थी हमारे देश में 2013 में, जिसमें से आउट ऑफ 80 विलेजेस में से 32 में उन्होंने देखा कि यू नो दीज आर दी पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, एंड उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा गरीबी है उन डिस्ट्रिक्ट्स में. उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम वहां पे कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट करें स्पेशली फॉर वुमेन पीपल. ओके, तो उस स्टडी के बाद से ही यू नो वी हैव ट्राइड टू हैव मोर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन आवर कंट्री,
with special emphasis on women participants, as well as from those people who are the non-agricultural sector. So these schemes are not for those people, you know, who are involved in agriculture. अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि बास्केट्स बनाना, हैंडीक्राफ्ट बनाना, पापड़ बनाना, ठीक है, जो ये काम लाइक वुमेन के लिए जनरली माने जाते हैं कि वो कर सकती है, ठीक है, तो उन जगहों पे उनको छोटे अमाउंट का लोन देती हैं ये लोग, ताकि वो लोग अपना कोई बिजनेस बना पाए एंड यू नो अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर पाए, ठीक है. Now let us just quickly come to this definition of the self-help group. So देखो NABARD जो है, which is National Bank for Agriculture and Rural Development, उन्होंने डिफाइन करा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को. ये क्या है? दीज आर स्मॉल इकोनॉमिकली होमोजीनियस एंड एफिनिटी ग्रुप्स. अभी इकोनॉमिकली होमोजीनियस का क्या मतलब है? इकोनॉमिकली होमोजीनियस मींस कि जो इनकी पैसे के हालात हैं वो ऑलमोस्ट सबके एक जैसे हैं, मतलब ऑल ऑफ देम आर मोस्टली पुअर, ठीक है. एंड एफिनिटी ग्रुप ऑफ रूरल पीपल, वॉलंटरी फॉर्म्ड, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है, ऐसा कोई नहीं कह रहा कि नहीं मेंबर बनना ही बनना है, वॉलंटरी है, बनना है बनो, नहीं बनना मत बनो, विच इज फॉर्म टू सेव and mutually agree to contribute common fund to be lent to its members as per group discussion for their social economic development. अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? ये बेसिकली छोटे लोगों का ग्रुप है जो कि बनाया गया है रूरल पुअर को अपलिफ्ट करने के लिए, जहां पे लोग आते हैं और वॉलंटरी थोड़ा बहुत पैसा जो है इसके मेंबर्स को लेंड करते हैं ताकि उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है. तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो लोग सिमिलर कंडीशन में है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को फाइनेंस में हेल्प कर सकते हैं, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकते हैं और बाकी सर्विसेज में हेल्प कर सकते हैं. ये जनरली सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है, सेल्फ गवर्नड होते हैं, इनको कंट्रोल भी इनके पीयर्स ही करते हैं, और ये एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ ग्रुप है जो कि कॉमन पर्पस के लिए साथ में आता है, ठीक है. अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का? लोग तो प्राइमरी एम ऑफ सच ग्रुप्स इज टू एनहांस द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. मेन एम क्या है कि वो फाइनेंशियली कुछ अर्न कर पाए, कुछ सेल्फ रिलायंट हो पाए, ठीक है. अलॉन्ग विद अदर लाइक और भी बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हो गया, किसी चीज पे अवेयरनेस इंक्रीज करना हो गया, ट्रेनिंग देना इन लोगों को, ठीक है. तो ये सारी चीजें भी साथ में ऑब्जेक्टिव्स में आ सकती हैं. Okay, but look, the main aim is basically, you know, that it wants to empower women, remove poverty, and promote banking habits among the poor. अब देखो पुअर लोगों को बिल्कुल आदत नहीं होती है सेव करने की, ठीक है, तो ये उनके बीच में एक वो सेविंग वाली हैबिट क्रिएट करना चाहते हैं ताकि यू नो अगर वो अपना कुछ करना चाहे तो उनके पास पैसा हो अपना कोई भी काम करने के लिए, ठीक है. So some of the other objectives also are that, you know, it is to serve the society in a better way, to generate additional income for its members, then to serve as a collective guarantee system whereby members purposely work together for some social gain, then they provide financial and technical support to the group members, and they provide loan for any productive service. तो यहाँ पे members जो हैं ग्रुप के वो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, ताकि उनके पास एक कैपिटल बन जाए और फिर उसको लेंड करना शुरू करते हैं उन लोगों को जिनको जरूरत होती है, ठीक है. सो दीज डेज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, and you know they have become a very important part of the society, especially if you talk about marginalized and downtrodden people of the society, जिनको generally formal banking system बिल्कुल भी help नहीं करता, ठीक है. तो जिन लोगों को बेसिकली फाइनेंस चाहिए और जिनको बैंक जो है वो फाइनेंस देने को तैयार नहीं है, उन लोगों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है. आपको देखो कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स भी है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के. आई थिंक वी विल जस्ट स्टॉप ओवर हियर फॉर टुडे. ये बाकी की चीजें ना हम अगली क्लास में करेंगे. आई विल जस्ट कम टू द Q&A सेशन. Okay, and let me just take your doubts, whatever doubts you have. Along with that, I will also share the file with you in the chat group itself. Just give me a minute. Yeah, so I can see some questions in the quick Q&A session as well. Just give me a minute. I will just take them.
WhatsApp group. But can anybody please put the link of the WhatsApp group? Okay, so it has already been done. If you have any questions, please put them in the Q&A box. I will just take them. I forwarded the notes on the chat group. All of you can just have a look. How to join the chat group? Just click on the link and you can just join the WhatsApp group. It's very simple. Fine. Okay, any other doubts that you have? You can put them in the Q&A session. Okay, no doubts. Then I think I will just end the class. Thank you, all of you.